1 second. ओके सो एवरीवन, आज का जो सेशन का एजेंडा है वो ये है कि GS1 को कैसे टैकल किया जाए। तो रमनदीप मैम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगी, उनके बारे में कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे कुछ जनरल फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं हम कि कुछ एक लिमिटेड एंगल से अगर हम देखें क्वेश्चन को और उन्हीं फ्रेमवर्क्स को हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई करें, तो लिमिटेड नॉलेज से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो आंसर है वो डाइवर्स भी रहेगा और जो फ्रेमवर्क हम करेंगे वो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग जो सिलेबस के टॉपिक्स है वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आई विल हैंड ओवर द डिस्कशन टू द मैम। रमनदीप मैम, यू कैन कंटिन्यू। Okay. Hello everyone. This is Ramandeep Kaur, and we took a previous session also 2-3 days back, and you can also watch that on YouTube. In that session, we discussed about what should be the strategy for GS paper 1 for UPSC CS exam. And in that session, we did in detail discuss that what are the common doubts which I answered actually, which I tried to answer. And in today's session, actually, we will discuss 2 questions which were provided by in the group only, and these 2 questions were asked in 2021 GS paper 1 only. So by taking 2-3 questions in coming future sessions also, we are going to discuss this question, and also when this session ends, the PDF will also be provided to you. Now coming to what are the questions that were provided by me in the group. Okay, the first question is actually I took the PDF print also, so I'm going to discuss the answer from my PDF only. Okay, the question is, explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. And this question is for 10 marks. First of all, in this question, first thing you have to understand is that in GS1, there are 3 topics actually. First is history, second is society, and the third one is geography. So in a way, this question is interlinked with the geography and history as well. तो इसको एक तरह हम कवर कर सकते हैं कि ये एक तरह का ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बताना है, एंड उसके साथ साथ ही एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया की जब बात हो रही है, तो जब पास्ट की कोई बात होती है तो वहां पे हिस्ट्री ही को ही हम कंसीडर करते हैं. So this question is for 10 marks, and for a 10 marks question, you have to write around 150 words. And in a 10 marks question, actually the answer should be very apt, concise, and to the point. Now coming to what should be the structure of the answer. In the structure, first of all, you should start with a good introduction, and this introduction should be very apt and concise. And first of all, the introduction should also revolve around what is main keyword in the question title. For example, in this question, the keywords are that role of geographical factors towards the development of ancient India. Now, the main keywords are geographical factors, and another is development of ancient India. So there are many ways to start a good introduction, but I started with the introduction that is like that geographical factors like the northwestern Himalayas, river system, etc. acted as a natural barrier and influenced climate, trade routes, and cultural interaction, and contributing significantly to India's historical evolution. And spanning a vast subcontinent with a wide array of natural features, India's geography exerted a profound influence on its development. Now, what happened? First of all, we should consider that what are the geographical factors or the geographical features of subcontinent. First of all, in northwestern part of subcontinent, there are various mountain ranges like Kirthar ranges there, and in northern part the high ranges are there. Okay, Greater Himalayas is there. Now what happened, due to these geographical factors, that these Himalayan factors, it acted as a natural barriers for invaders as well. For example, most of the invaders were not able to come to India or invade India through northern route. The reason was that the Trans-Himalayan range that are very high actually, and were not easy to surpass or transpass. Okay, then what happened, यहाँ पे geographical factors को हमने ये डिस्कस करा है कि नॉर्थ से जो इन्वेजन करने थे वो बहुत टफ इसलिए भी होते थे क्योंकि ये रेंजेस जो हैं वो बहुत हाइट की हैं. एंड बट फिर क्या होता है कि जब नॉर्थ से इन्वेजन पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उससे इन्वेजन स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे कुछ माउंटेन पासेस होते हैं. ओके, तो जैसे बोलन पास है, तो ऐसे पासेस की वजह से ये जो इन्वेडर्स हैं दे वर एबल टू come to India and
जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने फुलफिल करा। देन इसी जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण, यानी कि हिमालयाज के कारण, एक तो भारत का इन्फ्लुएंस जो क्लाइमेट है वो उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आता है। फॉर एग्जाम्पल दैट व्हाट हैपेंड दैट दिस in geography you must have read that these trade winds and these jet stream, all are these affected by the Himalayas only, and it also prevented the cold Siberian winds to come to India as well. एंड इसी के कारण ये जो हिमालयन रीजन है ये एक ट्रेड रूट भी रहा है ऐसे, क्योंकि एक सिल्क रूट जो है वो इधर से जाता था जो चाइना से स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद ये होता है कि बाकी जैसे कि फिर कल्चरल इंटरेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सो ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम इंट्रोडक्शन में। नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी, इन द मेन बॉडी यू शुड मेंशन such geographical feature in a more elaborated way. First of all, we discuss about the relevance of Himalayan mountains and how it affected ancient India, for example, invasions. Then the second point would be the cultural interaction. Then the third point would be that, for example, the potential जो invasions होते हैं थोड़े टाइम मतलब एडी के टाइम में भी जो होते हैं उन पे भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देन जो हिमालयन माउंटेन्स प्ले करते हैं रोल एक क्लाइमेट कंडीशंस को भी मॉडरेट करने के लिए ये है। फिर ये जो हिमालयन रीजन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वेरियस रिवर जो सिस्टम है लाइक इंडस एंड गंगा, इट ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम दिस हिमालयन सिस्टम ओनली। सो दिस इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयंस टू इंडियन ज्योग्राफी एज वेल, एंड ऑल दीज रिवर्स वर द cradles of civilization. For example, we know that the Harappan civilization, the main epicenter of the civilization was around Indus Valley and the Ghaggar-Hakra river also. And also the empires like Guptas and later on Mauryas, they were all ये गैंगेटिक रीजन के आसपास ही ये सारे एम्पायर्स होते हैं। तो एक तरह का ये भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन यही जो फैक्टर है रिवर्स का ये सदर्न इंडिया में भी रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा जो रिवर्स हैं ये भी क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चोलाचेरा पांड्याज हैं उनकी टेरिटरीज को भी अगर आप देखोगे तो वो वही रिवर्स के अराउंड ही है। Then also the another point would be that India's sacred geography includes its river, mountains and the forest that held profound spiritual significance. For example, the Ganga River, the Himalayas, the revered places like Varanasi influenced religious beliefs and practices. Now what happened कि जो एक इन रिवर्स की बहुत ही एक सेक्रेट जो रेलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो वाराणसी है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक हिंदू जो है रिलीजियस प्लेस है और गंगा की वजह से उसकी मेन सिग्निफिकेंस है। फिर इससे एक रेलेवेंस रिवर्स की यही है कि जितने भी कुंभ मेले हैं, जितने भी 4 जो कुंभ लगते हैं वो सभी किसी ना किसी रिवर के अराउंड ही लगते हैं। तो इससे भी ये जो हजारों सालों से चलती आ रही प्रथा है उसका भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Then influences also on the pilgrimage site that we discussed like Ujjain and other areas also. Then the next point would be related to the climatic condition. Now what happened, the predictable monsoon winds proved to be crucial for development of agriculture. हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो मॉनसून विंड्स की जब डिस्कवरी होती है तो उसके बाद जो ट्रेड है ना वो कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं दे केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब मॉनसून आ रहा होता है भारत में, और जब मॉनसून रिसीड कर रहा होता है तो उस टाइम दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल होमलैंड्स। Then presence of different types of climatic zones. Now we are going to discuss what are the climatic zone, like a temperate zone, then tropical, subtropical, all these zones. इनकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना उसमें बहुत अच्छा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Then the another point would be that the relevance of Thar Desert, that it is located northwest and acted as a natural barrier against invasions. Then the relevance comes to the Indian Ocean and its vast coastline along the Indian Ocean facilitated maritime trade. And here you should mention some of the famous ports also like Arikamedu Port, Muziris Port, and in ancient time in Harappan civilization time the Lothal Port as well. And then what happened, even the maritime trade contributing to flourishing of empires such as Satvahana, Cholas and Pallavas, क्योंकि ये सब maritime जो trade है उसके ऊपर इनका जो empire है वो बहुत dependent था, and that is why इनकी बहुत ये जो ports है ये बहुत relevant थे। Then Deccan Plateau की ये relevance है that this region is rich in the minerals, and that is why
जो माइनिंग एक्टिविटीज होती ही थी, सो दिस रीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड ऑल्सो द छोटा नागपुर प्लेट्यू, एज वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द माइंस लाइक आयरन माइंस, कोल माइंस, दे आर इन दैट रीजन ओनली, और उसकी वजह से उन्हीं छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो माइंस है उनको यूज करके जो मॉरियंस थे वो बहुत बड़ा एक एम्पायर बन गए थे। तो एक तरह उस रीजन का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देन द नेचुरल रिसोर्सेज दे आल्सो लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इट आल्सो हेल्प्ड इन फ्लरिशिंग ऑफ वेरियस एम्पायर्स एज वेल। देन ऑल्सो व्हाट हैपेंड, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो मेटालर्जी इंडस्ट्री है चोला पीरियड में उसका बहुत राइज होता है, और हमने पढ़ा ही है कि जो वहां के नटराज के स्कल्पचर्स हैं दे आर वर्ल्ड फेमस चोलास के, तो उसका भी एक रेलेवेंस यही है कि ये जो मिनरल रिसोर्सेज यहाँ से मिलते हैं उससे वो लोग बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। Then the dense forest also played a very important role in cultural and religious and economic life as well. What happened that एक तो वहां से टिम्बर मिलता था जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, देन फ्रूट्स, अलग अलग चीजों की जो जड़ी बूटियां थी वो मिलती थी, बट इसके अलावा एक रिलीजियस एंड कल्चरल इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि जो बहुत सारे ऋषि थे और जो संन्यास ले चुके होते थे लोग, वो जंगलों में रहते थे, और बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स है लाइक अरण्यक जिन्हें बोला जाता है, they were written in these forest areas only, so they have a cultural and religious relevance as well. Then you can mention that the trade and connectivity, that India's strategic location at the crossroads of trade routes facilitated commerce with the other ancient civilizations such as Mesopotamia and China. For example, the Silk Route, it passed through India, connecting to the rest of world, and even the Uttar Path and Dakshin Path, they were important trade routes, international actually trade routes which pass through Indian geography only. So in this way, we have discussed some of the important points, that what were the geographical factors which played an important role when it comes to development in ancient India. Now, main body is also discussed. Now, coming to what is the conclusion. Again, in conclusion, you should actually summarize all the points which were discussed in the main body. And another way is that to conclude in a way like that Indian geography profoundly impacted ancient India's development, fostering agriculture prosperity, trade networks, and cultural exchanges, resulting in a diverse and a resilient civilization that continues to influence modern day. कि सबसे बड़ा एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, देन ट्रेड नेटवर्क एंड देन कल्चरल एक्सचेंज। ऐसे करके आप इनको सम अप कर दोगे, और जिसकी वजह से एक बहुत ही रेजिलियंट सिविलाइजेशन भारत में हमें देखने को मिलती है। वेट अ मिनट मैम, रमन मैम, आई वुड लाइक टू इंटरवीन दैट हमारे साथ अभी IFS अथर तिवारी सर हैं, तो वो भी इंटरेक्ट करना चाहेंगे बच्चों के साथ, तो मैं सर से चाहूंगा एक बार, सर प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी सर। तो बस ऐसे ही यार, मैं अभी आज थोड़ा सा फ्री था तो मोहित ने बोला मैम सेशन ले रहे हैं, एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बस यार हम लोग केवड़िया में आए और मोदी जी आने वाले हैं परसों। ओके। तो वही था। क्या बाकी सबसे यही है मेरा कंसर्न नहीं, रादर सजेशन है। मैम जो पढ़ा रहे हैं प्लीज लिसन टू हर, शी has scored really well in GS has been told by Mohit and it will really help you। कोई बताता नहीं यार, मेरे प्रिपरेशन डेज में किसी ने नहीं बताया। if somebody is telling you with this much alacrity, I would ask everyone to please take note of this and utilize this, है ना। बाकी कोई भी डाउट है, rather I would be free in the coming 10 days, after 10 days, so I'll also be there to address to your concerns, right? That's all I wanted to say. I hope I'm audible, right? Yes, sir. Sir, you are audible. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir, for the encouragement. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You can continue. And also, people here can talk and say that what was the demand of the question, like what you interpreted from the question. You can also raise hand or say about it, what you thought about the question and what was your approach, so that we can help you in correcting your approach, right? So if anybody has any doubt in the first question, they can share. Then we can move to the second question. Yes, the first question is over from my side. If you have any suggestion regarding this question or any doubts, now you can contribute. Then we'll move to our second question. Any doubts and any suggestions related to first question?
Yes, please. Okay, ma'am, you can continue then. Okay. So our second question is, what are the differences between Mahatma Gandhi and Ravindranath Tagore in their approaches toward education and nationalism? And this question is also for 10 marks, and you have to write about 150 words for this particular question. Now, for your general understanding, I'm telling you that Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, they were both nationalists. Okay. And there are various similarities in their thought process, but at the same time, there are various kind of differences when it comes to various ideologies related to education and nationalism, and both of them contributed as collaborated with each other when it comes to national movement or freedom struggle. But at the again at the same time, कुछ मामलों में उनके बहुत सारे differences थे जिनको अभी हम आने वाले points में mention करेंगे. For example, again, you have to write an apt and concise introduction. In the introduction, you can mention some of the points like, actually, this introduction I wrote from a book which I read called Mahatma and Poet. उसमें से मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे कि इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है उनको मैंने ऐड करा. Okay. Then in introduction you can write that there were many striking contrasts between the two personalities, but there was not a friendship based on just mutual admiration. They had differences on fundamental philosophical questions, which led to disputation about many political, social, and economic matters. यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बहुत सारी उनमें सिमिलैरिटीज तो थी, बट उनकी फ्रेंडशिप सिर्फ इसी चीज के बेसिस पे नहीं थी कि वो एक दूसरे की तारीफ करते थे, जबकि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज भी थे उनकी एक दूसरे को लेकर. एंड इन्हीं जो डिफरेंसेस से हमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर जो उनका अलग अलग व्यूज थे उनके बारे में हमें जानने को मिलता है. But in the question, you have to write about what were the differences in their approach regarding education and nationalism. So in this question, you have to write very particular answer. So you cannot elaborate it too much or beat around the bush because this question is for 10 marks. So you have to write according to demand of the question. Now you can make a heading called as education, a bigger heading called as education, and you can mention that the intellectual exchange in 1914 to 15, when Mahatma Gandhi, along with the students of Phoenix School in South Africa, visited Tagore's Shantiniketan. So इनका पहले तो बिल्कुल एक दूसरे को जानते थे क्योंकि इंटेलेक्ट थे, दोनों इंटेलेक्चुअल्स थे. बट इनकी जो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज सबसे पहले कब स्टार्ट होती है? 1914-15 में, जब महात्मा गांधी, उन्होंने भी एक साउथ अफ्रीका में स्कूल खोला था जिसका फिनिक्स स्कूल नाम था. तो उनके स्टूडेंट्स को वो जो टैगोर के शांति निकेतन जो था उसमें लेके आते हैं एक तरह का इंटरेक्शन के लिए. सो यहां से उन दोनों की एक तरह की इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है वो एक्सचेंज होने शुरू होती है. नाउ यू कैन मेक अनदर सब हेडिंग कॉल्ड एज that Gandhi's approach to education, and in this subheading you may mention actually 5 points. For example, first point would be that Gandhi's approach to education in that he opened Phoenix School in South Africa to educate young minds. So यहाँ पे क्या होता है, गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीडम भारत में आने से पहले वो एक स्ट्रगल मूवमेंट, जब मूवमेंट एक पूरी उन्होंने अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी. तो वहां पे भी ओके तो यहाँ पे वो एजुकेट करने के लिए एक फिनिक्स स्कूल साउथ अफ्रीका में खोलते हैं. देन अनदर पॉइंट वुड बी दैट ही एम्फसाइज्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, फोकसिंग ऑन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. तो वो सिर्फ जो बुकिश नॉलेज थी उसी के ऊपर उनका फोकस नहीं था, वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट तीनों का डेवलपमेंट हो. देन ही एडवोकेटेड फॉर नई तालीम. नई तालीम क्या थी? It was a system that integrated handicrafts and practical skills into education. तो एक तरह का वो क्या चाहते थे, जैसे हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी पढ़ने को मिलता है. तो यहाँ पे ये क्या होता है कि वो चाहते थे कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो भारत का उस टाइम बहुत रेलिवेंट थे भारत के लिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स उस टाइम बहुत पॉपुलर थे और एक तरह का बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक उनका शेयर जो था वो था उस टाइम.
तो वो चाहते थे कि ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करा जाए. देन ही एम टू प्रमोट इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जेन्युइन नेशनलिस्ट फीलिंग. तो उनका एक ये भी मोटिव रहता था कि सब बराबर हो उनके क्लासरूम्स में, एक भाईचारा हो लोगों के बीच में, और नेशनलिस्टिक जो भारत के प्रति थी वो फीलिंग्स को उजागर करने का भी वो वहां पे काम कर रहे थे. तो एक तरह की उनकी बड़ी प्रोग्रेसिव एंड इगैलिटेरियन अप्रोच थी एजुकेशन को लेकर. देन ही बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल गाइडेंस एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट रीजनलिज्म. तो एक तो गांधी जी भी जो थे वो हिंदी के बहुत फेवर में थे. वो भी मानते थे कि जो हिंदी है उसे नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए. बट उसके पीछे उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि एक तरह का जो पूरे भारत को इंटीग्रेट करा जा सके, कि अलग अलग रीजन्स के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके और एक ही भाषा में बात कर सके और समझ सके. तो एक तरह बड़ी सेंट्रलिस्टिक उनकी अप्रोच थी. और जो रीजनलिज्म था कि कुछ लोग बस फोकस करते थे कि इस रीजन का डेवलपमेंट हो, इसका हो, वो ऐसा नहीं, उनका बिल्कुल फोकस नहीं था. वो चाहते थे कि ओवरऑल जो पूरे भारत का एक एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए. अब हमने यहाँ पे गांधी जी के अप्रोच को डिस्कस कर लिया. नो वी विल डिस्कस द टैगोर्स अप्रोच टू एजुकेशन. एंड इन दिस पैराग्राफ वी विल डिस्कस अराउंड 4-5 points only. Okay, then you can mention that Tagore prioritized individual experience over objective knowledge and emphasized being in the landscape. यहाँ पे क्या होता है, जैसे गांधी जी ने यहाँ पे एक फिनिक्स स्कूल खोला था साउथ अफ्रीका में, वैसे ही जो टैगोर है उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना करी थी. और जो शांति निकेतन था ना, उसको इस तरीके से बनाया गया था क्योंकि वहां पे जो नेचुरल लैंडस्केप था वहां पे बनाया गया था. वहां जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट के माहौल में बच्चे पढ़ते थे. तो इस तरह वो कहते थे कि जो हर बच्चा है ना, एक तो वो हर बच्चा यूनिक है, तो वो जो यूनिक बच्चा है वो अपने यूनिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखे कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं, वो उसको उजागर करे, रादर देन कि वो रोट लर्निंग जो पूरा सिलेबस वाइज जो पढ़ना है उसको, वो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे. Then he aimed to empower village and promote self-sustained communities. और यहाँ पे एक इनका मेन मकसद था, वो क्या चाहते थे कि हर एक जो रीजन में जो गांव है वो क्या करे, वो सेल्फ सस्टेन्ड बने. मतलब सेल्फ सस्टेन्ड इन अ वे कि वहां की जो एजुकेशन है वो वहां का जो कल्चर है, वहां का जो सिस्टम है उसको वो ध्यान में रखते हुए एक तो डेवलप करे और एक सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटीज वहां पे बन के तैयार हो पाए. Then he sought to decolonize education in British colonial India. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि एक्चुअली 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो कमीशन है वो भारत में भेजे जाते हैं. लाइक हंटर कमीशन था, यूनिवर्सिटी कमीशन था, वुड्स कमीशन था. वो इसलिए भेजे जाते हैं जिनका मेन मकसद था कि एजुकेशन के फील्ड में जो रिफॉर्म करने हैं. एक्चुअली वो रिफॉर्म जो थे वो ज्यादा तो वैसे ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, तो लेकिन वो कुछ कंसेशंस भारतीयों को वहां पे दे रहे थे. बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो टैगोर थे वो चाहते थे कि ये जो कॉलोनाइज कर दिया है अंग्रेजों ने जो एजुकेशन को, मैकॉले सिस्टम आ गया है, तो वो इस चीज से हटा के वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो बिल्कुल एक तरह की इंडियनाइज्ड हो. इंडियनाइज्ड ऐसे कि जो भारत के कल्चर है अगेन एंड भारतीय जो फैक्टर्स है वो अपना रोल प्ले करे, और जो भारतीय एजुकेशन है वो भारत से ही इंस्पायर्ड हो. तो ये उनकी अप्रोच थी. देन ही एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड अ यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, फोकस्ड ऑन होलिस्टिक एजुकेशन एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग. अगेन यहाँ पे क्या था कि वो शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे और स्कूल भी खोलते हैं. और वही इनका मेन फोकस यहाँ पे भी यही रहता है कि एक होलिस्टिक बच्चे का डेवलपमेंट हो एंड जो इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो वो वहां पे डेवलप हो, क्योंकि शांति निकेतन में और भी बहुत रीजन्स के आके लोग स्टूडेंट जो थे पढ़ते थे. Now we have discussed the education. Now coming to approach towards nationalism, and you can make a heading called as nationalism, and then you can make a subheading called as Gandhi's approach to nationalism. And here we are going to discuss 2-3 points. In this, you can write that the Mahatma Gandhi argued that the type of nationalism favored by freedom fighters everywhere was too violent in its nature and approach, and it would only lead to future conflicts. सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि गांधी जी एक तो वायलेंस के बहुत अगेंस्ट थे. तो क्या होता था कि इस टाइम पे जो रेवोल्यूशनरीज थे ना उनका भी राइज हो रहा होता है. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में तो देखी जाती है, लेकिन भारत में भी इस टाइम उनका राइज होता है. तो यहाँ पे गांधी जी क्या सोचते हैं कि ये जो फ्रीडम फाइटर जो इस तरह का नेशनलिज्म जो उनकी सोच है उसके अकॉर्डिंग जो लड़ रहे हैं, ये तो ये बहुत वायलेंट है और इससे इनको सक्सेस तो मिलनी नहीं, लेकिन इसके साथ और फ्यूचर जो है कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ जाएंगे.
Then Mahatma Gandhi's idea of nationalism was to be based on self-sufficiency at all levels of society. वो वही बात करते थे, जैसे एक तो सब राज्य को भी वो बिल्कुल फेवर करते थे। बाद में जो जब उनकी नॉन कॉपरेशन एंड सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, उसमें भी देखने को मिलेगा कि वो जो खादी को प्रमोट करते हैं और वो अगेंस्ट होते हैं जो फॉरेन प्रोडक्ट्स, उसके भी एक टाइम पे आके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो एक तरह का वो क्या करते हैं कि जो भारत की जो हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे वो चरखा जो है वो चलाते होते हैं ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके कि हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ फोकस करें, खादी को प्रमोट करते थे। तो ये जो तरीके का वो नेशनलिज्म था ना, वो इस तरीके से प्रमोट करना चाहते थे, रादर एक तरह का कंस्ट्रक्टिव वे में। और जबकि जो रेवोल्यूशनरीज थी, उनकी अप्रोच को वो मानते थे कि वो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव तरह का नेशनलिज्म है। नाउ कमिंग टू टैगोर्स अप्रोच टू नेशनलिज्म. Okay, here also we are going to discuss 3-4 points. The first point would be that the critical stance of Tagore with respect to idea of nationalism derived from European paradigm and internalized by Asian societies, sometimes in the form of ethnic and cultural chauvinism. यहाँ पे क्या होता है, एक तो वो बिल्कुल फेवर में थे कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, जो ये कॉलोनियल एम्पायर है इसका एंड होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थे ना वो ना इंटरनेशनलिस्ट थे। वो ये भी मानते थे कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे यूरोप में जो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं ना, उसका एक कारण ये भी होता है कि वहां पे अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है ना उसका राइज हो रहा होता है। तो ये जो नेशनलिज्म में लोग अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और दूसरी नेशनैलिटी को वो इंफीरियर मानते हैं, तो उसके कारण उस टाइम बहुत सारे पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो इस तरह के जो नेशनलिज्म है ना, जो नैरो अप्रोच वाला होता है, उसके बहुत अगेंस्ट होते हैं कि ये जो अपने ही एथनिक एंड कल्चर को ज्यादा बढ़िया मानते हैं, दूसरों को बुरा मानते हैं, तो वो इसके अगेंस्ट थे। Then it is well known that Tagore, although an ardent and articulate proponent of nationalism during the Swadeshi agitation in the first decade of 20th century, began to be increasingly critical of the kind of nationalism he saw at work in the progress of Japan's growth into an aggressive imperialist power, the synergistic thrust in Europe toward the global conflict of 1914 to 18 and emergence of nationalist terrorism in Bengal. यहाँ पे 4-5 पॉइंट है वो कवर करे गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये तो बिल्कुल बात अगेन सच है कि वो आर्डेंट एंड बहुत ही आर्टिकुलेट एक तरह के नेशनलिस्ट थे। वो चाहते थे भारत के फेवर में बात करते थे वो। बट इसके साथ क्या होता है, लेकिन क्या होता है जब स्वदेशी एजिटेशन होती है बंगाल के पार्टीशन के बाद, तो उसके बाद लोग जो है वो डिस्ट्रक्शन पे फोकस करने लग जाते हैं, जो फॉरेन लोग थे उनको जलाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है ना, अब यहाँ पे जो टैगोर है ना वो थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं। वो इसके फेवर में नहीं थे कि आप जो स्वदेशी मूवमेंट जो टर्न ले लेती है उस टाइम, कि इस तरह ये जो मूवमेंट है ये टर्न नहीं लेनी चाहिए। देन व्हाट हैपेंड, इसी टाइम पे जापान का राइज होता है। हम देखते हैं मेजी रिस्टोरेशन होता है, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो जापान है एक बहुत ही बड़ी इंपीरियलिस्ट पावर बन के उठता है। तो वो क्योंकि फिर वो एशियन जो एक कंट्री है जैसे जापान है, उसका राइज होता है इस तरह के नेशनलिज्म के तरह के, वो भी इंपीरियलिस्ट बनना शुरू हो जाता है। वो मंचूरिया पे इन्वेट करता है 1905 में, जो चाइना का एक पार्ट होता है। तो इस तरह उनको लगता है कि ये जो नेशनलिज्म एशिया में भी आ रहा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियंस, तो इसके कारण और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी एक नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर इसी टाइम पे जो बंगाल में है रेवोल्यूशनरीज का राइज हो जाता है। रेवोल्यूशन लाइक ये जो कई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम ही उभर के आती हैं, लाइक भवानी मंदिर जो है होती है वो होती है, फिर अभिनव भारत होती है। इस तरह की जो है जो रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन उनका राइज होता है। तो वो इस कारण ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं, एक ये स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा जापान का राइज, तीसरा वर्ल्ड वॉर, एंड चौथा ये जो बंगाल में नेशनल जो रेवोल्यूशनरी है उनका जो तरीका होता है, उसके कारण उनका ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल बदल जाती है। एंड हिज वर्क सच एज गीतांजलि एंड द होम्स एंड द वर्ल्ड, ये 2 बुक्स हैं जो टैगोर का वर्क है। जैसे गीतांजलि है एंड अनदर वन इज द होम एंड द वर्ल्ड। He explored the tensions between patriotism and a broader humanistic outlook. तो इन 2 बुक में भी वो सबसे बड़ा जिक्र ये करते हैं कि नेशनलिज्म से ऊपर ह्यूमनिस्टिक
जो आउटलुक है वो कि आप इंसान को इंसान की तरह समझिए, और जो पेट्रोटिज्म मतलब कि जो आपके देश के प्रति आपकी भावना है उससे भी बढ़कर ह्यूमनिज्म है। तो इस तरह वो नेशनलिज्म से ऊपर ह्यूमनिज्म को रखते हैं, तो ये भी एक अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। Then he emphasized the importance of broad humanistic concerns over constant political strategies. अगेन यहाँ पे कि पॉलिटिकल एक नेशनलिज्म को यहाँ पे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही माना गया है, तो वो अगेन वो यही कहते होते हैं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स को समझें। आप पूरे एक ब्रदरहुड की वर्ल्ड के ब्रदरहुड की बात करते थे, इंटरनेशनलिस्ट थे वो अपने अप्रोच में, इसके कारण वो जो उनका नेशनलिज्म ये था। And these are the points from my side. The body is also discussed in the conclusion. You can write that the Gandhi emphasized on practical, morally grounded education. Now we are going to summarize our points. So Gandhi emphasize करते हैं practically and moral grounded education. But Tagore का क्या अप्रोच थी? He championed a more liberal arts oriented education. फिर अगेन क्योंकि शांति निकेतन है, वहां पे बंगाली आर्ट का भी इन्फ्लुएंस होता है। बंगाल को हम वैसे भी जानते हैं कि वहां वो हमेशा रिच रहा है बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, और आर्ट लिबरल आर्ट्स वहां पे बहुत ग्रो करी, तो ये इन्फ्लुएंस टैगोर के एजुकेशन की अप्रोच में देखने को मिलता है। देन कमिंग टू नेशनलिज्म के रिगार्डिंग क्या था कि गांधी एडवोकेटेड फॉर नॉन वायलेंस एंड यूनिटी, वेयर एज टैगोर एम्फसाइज्ड ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स एंड अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज एंड वार्नड अबाउट द नैरो अप्रोच टू नेशनलिज्म। वही कि गांधी तो बात करते थे कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, बट टैगोर की क्या अप्रोच थी, वो कहते थे तो जो वेस्ट है और ईस्ट है उनके जो अच्छे पॉइंट्स है ना दोनों के, उनको आप कंबाइन करके लिए, और ये जो नेशनलिज्म की नैरो अप्रोच है ना उसको छोड़ के आप ह्यूमनिज्म जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाइए। सो द क्वेश्चन इज ओवर फ्रॉम माय साइड एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड all the points. If you have any suggestion regarding this question or the previous question or any doubt, now you can ask me, or any point if I miss some point then you can mention. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I just wanted to ask that if such a kind of question comes, like ma'am, it came, and if we have no clue about what to write, because ma'am, we generally study Subhash Chandra Bose and B.R. Ambedkar, but Rabindranath Tagore was kind of unexpected. So ma'am, how to handle such a situation in exam time conditions? Okay. First of all, ये बात भी है कि ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनली तो बहुत ही कम पूछे जाते थे, लेकिन क्योंकि एक तो है ये इसका टैगोर को इसलिए भी पूछा गया क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ये फिगर रही हैं उस टाइम पीरियड में। बट इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं मेंशन कर सकते, लेकिन जो भी आपने कहीं ना कहीं टैगोर के बारे में पढ़ा है, उनकी शांति निकेतन जैसे उसके बारे में तो आप पढ़ा ही होगा। फिर आप जो पेरिफेरल जहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रीलिम्स में खासकर आपने पढ़ी हो, तो उनको आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। गांधी तो ऑफकोर्स आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप एक तरह का ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऑफकोर्स एग्जैक्ट पॉइंट आपको नहीं याद आएंगे, इवन ये आंसर भी मैंने पढ़ने के बाद ही इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड करा है, बाद में करा है, तो ये कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा ये तो बिल्कुल ससेप्टेबिलिटी रहेगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप सही में नहीं आंसर कर पाओगे, तो वही आप पेरिफेरल नॉलेज का इस्तेमाल करिए, अपनी जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करिए, प्रीलिम्स की नॉलेज का इस्तेमाल करिए, एंड पीवाईक्यू के ऊपर थोड़ा फोकस रखिए। पीवाईक्यू के लिए इसलिए क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन अब आ गया, अब मे बी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेहरू या बोस के अप्रोच में क्या डिफरेंस था, या गांधी एंड बोस की कुछ ऐसा आ सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आप लिख पाओ तो जो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो भी थोड़ा बहुत आप जानते हैं उसे जरूर लिखिए, अटेम्प्ट जरूर करिए, एग्जैक्ट नहीं भी आ रहा तो। Okay, thank you, ma'am. You are welcome. Any other doubt? No. Any doubts? किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे और इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। कुछ जब भी आपको पूछना है, जनरल डाउट हो कुछ आपका मैम से या मेरे से, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, प्रिपरेशन के दौरान भी आपको इशू आ रहा हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैम मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल
पेपर में अगर पहला क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि जिसके बारे में नॉलेज हमारे पास कम है और अगर हम पेरिफेरल नॉलेज इस्तेमाल करते हैं और उतना अच्छा आंसर लिख नहीं पाते हैं, तो क्या हमारा ये बाकी आंसर पर इफेक्ट दिखाता है चेकर के हिसाब से? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चंस को जब इवेलुएट करा जाता है ना, तो आपने हर एक क्वेश्चन में क्या लिखा है उसी के बेसिस पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो पहला क्वेश्चन नहीं भी ढंग का लिखा और एग्जामिनर ने मानो 10 में से आपको 2 नंबर दे दिए, लेकिन जब वो सेकंड पे मूव करेगा और आपका क्वेश्चन पहले तो वो बिल्कुल पढ़ेगा तो है ही, बिना पढ़े वो मार्क्स नहीं देगा। एक और प्री जजमेंट वो नहीं ऐसे तैयार नहीं करते, वो बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं जो ऐसे प्री कंसीव्ड नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन गलत लिखा है तो आपने आगे भी गलत लिखे होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को फिर जब वो पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपकी बॉडी पढ़ेंगे, एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आपने सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा है, तो वो उसके नंबर सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के देंगे, ऐसे ही थर्ड को देंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको कई बार 1, 2, 3 ऐसे करके भी क्वेश्चन पूरे नहीं आते होते, लेकिन वो कुछ भी लिखते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई और किसी का कोई डाउट? नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ओके, अस। इसी तरीके से हमें गाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माई बेस्ट, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना सजेशंस भी जरूर देते रहिए। हेजिटेट मत होइए, सब ऐसे इंटरेक्शन से ही बहुत चीजें आपको जानने को मिलेगी। सो इंटरेक्टिव बनिए आप सेशंस में। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।